morning students. I hope you all are happy and healthy at home. Students, today we will discuss lesson number 2 from our book Snapshots. The name of the lesson is The Address, written by Marga Minko. She was born on 31st March 1920. Marga Minko is the pseudonym of Sarah Menko. Pseudonym means pen name. Menko is her real surname, but an official accident, first vowel was changed. She is a Dutch journalist and writer. Students, let's discuss the characters of this story. Number 1, Marga Minko. She is the narrator. She was a girl of 15 or 17. Number 2, Mrs. S, the narrator's mother. Number 3, Mrs. Darling, a very wit, shrewd woman. She was an acquaintance of the narrator's mother. Acquaintance means क्या? Known or relative. Number 4, a girl of 15. She was the daughter of Mrs. Darling. Students, we have discussed summary of this chapter earlier, and today we will discuss this chapter line by line. So take your book with you. Let's take an introduction of this story. During World War II, Germans invaded Holland, where 90% of people were Jews. Jews fled away in fear to other countries. Thousands of Jews imprisoned in concentration camps. A little girl with her mother had to leave their house. The girl remembered the address where she lived with her mother earlier, and after some time her mother died. When the war was ended, the girl returned to the earlier address where her mother had left things to a woman, Mrs. Darling. The girl wanted the possessions, belongings back, but Mrs. Darling was not interested in giving back the things. That's why the girl determined to forget the address. Let's discuss the story line by line. This story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. यह एक छोटी सी कहानी, poignant means क्या? Moving, मर्मस्पर्शी, दिल को छू लेने वाली कहानी है, जहाँ पर एक लड़की है, वो जाती है हॉलैंड वापिस अपनी माँ की चीजों को लेने के लिए, युद्ध खत्म होने के बाद. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. Evoke means क्या? Produce. Earlier means क्या? Previous. जब लड़की को वो चीजें मिलती हैं, वो उन चीजों तक पहुंच जाती हैं, तो वो चीजें लड़की के दिल में पुरानी यादों को जगाती हैं. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. यद्यपि लड़की डिसाइड करती है, निश्चय करती है कि उन सब चीजों को भूल जाए और आगे बढ़े. ये वह दृढ़ निश्चय कर लेती है. Resolve means क्या? Determines. Do you still know me? I asked. I यहाँ पर नरेटर है, मार्गा मिनको है. क्या आप अब भी मुझे जानती हैं? मैंने कहा. The woman looked at me searchingly. Searchingly means क्या? Inquiringly. कि कुछ खोजते हुए, ढूंढते हुए नजरों से औरत ने मेरे को देखा. She had opened the door a chink. A chink means क्या? A narrow opening. बिल्कुल थोड़ा सा उसने दरवाजा खोला हुआ था. I came closer and stood on the step. मैं नजदीक आई और सीढ़ी के ऊपर खड़ी हो गई. No, I don't know you. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. I am Mrs. S. daughter. मैं Mrs. S की बेटी हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उस औरत ने अपने हाथ को दरवाजे के ऊपर ऐसे रखा था जैसे कि वह उसको प्रिवेंट कर रही थी, स्टॉप कर रही थी
और ज्यादा खुलने से रोक रही थी। Her face gave absolutely no sign of recognition. Absolutely means क्या? Completely. Recognition to be recognized. उसके फेस पर, उसके चेहरे पर कोई भी इस तरह के मार्क नहीं थे, चिन्ह नहीं थे, जिससे ऐसा लगे कि वह मेरे को पहचान रही थी। She kept staring at me in silence. Silence means quietness. Staring, looking carefully. वह मेरे को घूर करके ध्यानपूर्वक देखती रही, शांतिपूर्वक। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. शायद मैंने गलत समझा था, ऐसा मैंने सोचा, शायद यह वह नहीं थी जिसको मैं जानना चाहती थी। I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. Fleetingly means क्या? Momentarily, क्षण भर के लिए। मैंने उसको सिर्फ एक बार देखा था, वो भी क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, और वो भी काफी समय पहले, सालों पहले। It was most probable that I had rung the wrong bell. Probable means क्या? Possible. ज्यादा संभावना इस चीज की थी कि शायद मैंने गलत घंटी बजा दी थी। The woman let go of the door and stopped to the side. अब औरत ने दरवाजे को थोड़ा हटने दिया और एक तरफ हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. वह पहने हुई थी मेरी माँ के द्वारा बुना गया, knitted means क्या? सिलाई से बुना गया जो कार्डिगन था, स्वेटर थी, वो हरे रंग की। The wooden buttons were rather pale from washing. Pale means क्या? Fade. जो वुडन के, लकड़ी के बटन थे वो हल्के पड़ गए थे, फेड हो गए थे काफी बार धुलने की वजह से। She saw that I was looking at the cardigan. उसने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही थी, and half hid herself again behind the door. और उसने फिर से अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया। But I knew now that I was right. परंतु अब मैं जानती थी कि मैं ठीक थी, मैंने सही घर की बेल बजाई थी। Well, you knew my mother? I asked. ठीक है, आप मेरी माँ को जानती थी। Have you come back? said the woman. औरत ने कहा, क्या तुम वापिस आ गए हो? I thought that no one had come back. मैंने सोचा कि कोई वापिस नहीं आया। Only me. केवल मैं ही वापिस आई हूँ। कौन बोल रहा है ये? ऊपर किसने बोला? I thought no one had come back. ये उस औरत ने कहा है। अब जो नरेटर है वो बोलती only me. सिर्फ मैं वापिस आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. Passage means यहाँ पर क्या है? Street, मार्ग। एक दरवाजा उसके पीछे खुला और बंद हो गया। A musty smell emerged. Musty means क्या? Smell, damp and unpleasant. एक सीलन भरी गंदी सी दुर्गंध थी, वो फैल गई। emerged means क्या? रोज। गंदी सी दुर्गंध फैली जो कि सीलन भरी थी, जिसमें गिले होने की बदबू आ रही थी। I regret. I cannot do anything for you. मुझे दुख हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। Regret means क्या? Feel sorry for. मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। I have come here specially on the train. मैं यहाँ पर स्पेशल चल करके आई हूँ, ट्रेन से, रेलगाड़ी से। I wanted to talk to you for a moment. मैं तुमसे एक क्षण के लिए बातें करना चाहती हूँ। It is not convenient for me now. Convenient means क्या? Easy, comfortable. अब मेरे लिए आसान नहीं है तुमसे बातें करना, ये उस औरत ने बोला। Said the woman. औरत ने कहा, I can't see you another time. मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती हूँ, कभी दोबारा से आना। She nodded and cautiously closed the door. Cautiously means क्या? With care. उसने सिर हिलाया, बड़ी सावधानी पूर्वक दरवाजे को बंद कर दिया। As though no one inside the house should be disturbed. जैसे कि वह घर में किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। I stood where I was on the step. मैं खड़ी हुई थी जहां पर मैं सीढ़ी पर थी, वहीं पर। The curtain in front of the bay window. Bay window कहता है a large window with glasses opening outside. घर की जो फ्रंट वॉल होती है उसके ऊपर, पूरी दीवार के ऊपर विंडो हो और वो सभी ग्लासेज हो उसमें, वो बाहर की तरफ खुले, उसको बोलते हैं बे विंडो। बे विंडो मूव। जो कर्टेन लगा हुआ था बिल्कुल सामने वाली खिड़की पर, जिसके शीशे बाहर खुलते थे, वो हिला। Someone stared at me. किसी ने मुझे घूर करके देखा। Stared means क्या? Gazed. ध्यानपूर्वक घूर करके देखना। And
वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और फिर हो सकता है उसने पूछा कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं था। वुमेन वुड हैव सेड, शायद औरत ने ऐसा कहा होगा। इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने जो नेम प्लेट बाहर लगी थी उसको दोबारा से देखा। डोरलिंग इट सेड, इट सेड किसके लिए है? नेम प्लेट के लिए, कि नेम प्लेट के ऊपर क्या था? डोरलिंग ही लिखा हुआ था। इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल, काले अक्षरों में व्हाइट इनेमल। इनेमल मीन्स यहाँ पर क्या है? एक काइंड ऑफ पेंट। वैसे क्या होता है, हमारे जो टीथ होते हैं उसका अपर पार्ट होता है इनेमल, जो कि हार्ड, सबसे हार्ड होता है हमारी बॉडी में। एंड ऑन द जैम, जैम मीन्स क्या होता है? ए वर्टिकल पोस्ट एट द साइड ऑफ द डोर, ऐसे वर्टिकल दरवाजे के साथ में कुछ लगा हुआ हो उसके ऊपर, वो जैम होता है। एंड ऑन द जैम ए बिट हायर, और जैम के ऊपर थोड़ा सा ऊपर द नंबर, नंबर लिखा था नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. अब मैं जैसे धीरे धीरे स्टेशन की तरफ चली, मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। Who had given me the address years ago? जिसने मुझे ये एड्रेस सालों पहले दिया था। It had been in the first half of the war. और ये समय था युद्ध के पहले के टाइम का आधा भाग। I was home for a few days and it struck me immediately. मैं कुछ दिनों के लिए घर पर थी और अचानक, struck means क्या? Came to my mind, मेरे दिमाग में अचानक आया। Immediately at once. That something or other about the rooms had changed. कि रूम में कुछ ना कुछ बदलाव था, कुछ ना कुछ मिसिंग था, कुछ चेंज था, सब कुछ पहले जैसा नहीं था। I missed various things. Various means क्या? Different. कि बहुत सारी चीजें वहां से गायब थी, मिस थी। My mother was surprised. I should have noticed so quickly. मेरी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ था ये जान करके कि मैंने ये सोचे इतनी जल्दी ध्यान दे लिया था। नोटिस में है टेकन नोट ऑफ, मैंने इतना जल्दी ध्यान दे लिया था कि कमरे में कुछ गायब है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, फिर उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपैरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। अपैरेंटली मीन्स क्या? क्लियरली। मैंने उसके बारे में पहले कभी कुछ नहीं सुना था, परंतु स्पष्ट था कि वह मेरी माँ की पुरानी रिलेटिव थी, एक्वेंटेंस थी, नोन थी, जान पहचान वाली थी। whom she had not seen for years, जिससे वह सालों से नहीं मिली थी। She had suddenly turned up and renewed their contact. अब वह वापिस आ गई थी अचानक से और उसने रिन्यू कर लिया था, स्टार्टेड अगेन। रिन्यूड मीन्स क्या? स्टार्टेड अगेन। उसने दोबारा से रिश्ता स्थापित कर लिया था, रिलेशन बना लिया था। कॉन्टेक्ट मीन्स क्या है पर? रिलेशन। Since then she had come regularly, और तब से वह रोजाना आती थी। Every time she lives here, she takes something home with her. हर बार जब भी वह हमारे यहाँ पर आती, वापस जाती, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के जाती थी। Said my mother, मेरी माँ ने कहा। She took all the table silver in one go. वह चांदी की सारी चीजें एक बार में ही लेकर के गई थी। इन वन गो मीन्स क्या? एट वन टाइम, एक साथ, एक बार में ही सभी चांदी की चीजें ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। एंटीक मीन्स क्या? वेरी ओल्ड। और फिर वह उन सबसे प्राचीन, बहुत पुरानी प्लेटों को ले गई थी जो कि वहां पर लटकी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस। लगिंग मीन्स क्या? ड्रैगिंग। वह बड़ी मुसीबत से घसीट करके ले गई थी उन बड़े बड़े फूलदानों को। एंड आई एम वरीड शी गोट ए क्रिक इन हर बैक। क्रिक मीन्स क्या? एठन। सडन स्टिफ फीलिंग इन बैक, कि अचानक ऐठन आ जाए, कुछ सख्त महसूस होने लगे बैक में, कमर में। तो इतना ज्यादा वजन वो लेकर के जाती है तो जो नरेटर है वो फील करती है कि कहीं उसकी कमर में ऐठन तो नहीं आ गई। फ्रॉम द क्रोकरी, कि जो क्रोकरी वो लेकर के गई एक साथ। क्रोकरी क्या है? डिशेज, पोट्स, बर्तन। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली। पिटिंगली मीन्स क्या? इन ए पैथेटिक मैनर। मेरी माँ ने एक दया भरे तरीके से सिर को हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, कि मेरे अंदर तो साहस नहीं था कि मैं उसको ये करने के लिए कभी कह सकूं। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। ये सुझाव उसने खुद ही मेरे को दिया था। कौन सा सुझाव?
जो घर की चीजें हैं, वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो मिसिस डॉर्लिंग ने सजेस्ट किया नरेटर की मदर को कि ये चीजें मैं अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि वो टाइम चल रहा है, तो वो चीजें मेरे घर पर सेफ रहेंगी, यदि कुछ गलत होता है तो चीजें बची रहेंगी। शी इवन इंसिस्टेड, और यहां तक कि उसने सुझाव ही नहीं दिया, इस बात पर जोर डाला। इंसिस्टेड मीन क्या, स्ट्रेस्ड, जोर डाला, दबाव डाला। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सभी अच्छी चीजों को बचाना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज, यदि हमें वहां से जाना पड़ा, वहां से छोड़कर के कहीं और जाना पड़ा, तो वह हमारी सभी चीजों को सेफ रखेगी। उसने ऐसा कहा, अन्यथा हम सब कुछ खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, नरेटर ने माँ से पूछ लिया, क्या आप, जैसे उसने कहा कि वो हमारी सब चीजों को ले जाएगी, तो आपने हाँ भर दी, आप सहमत हो गई उसकी बात से। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ चीख करके बोली कि यह जरूरी था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, सिंपली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से एक बेइज्जती होती ऐसे मना करना, इस तरह से बातें करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और उस खतरे के बारे में सोचो जो उठा रही है, वो जो खतरा उठा रही है हमारे सामान को ले जाने का, उसके बारे में सोचिए। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, कि कौन सा खतरा उठा रही है, जो प्रत्येक बार जब वह एक भारी भरकम सूटकेस या बैग के साथ हमारे घर से बाहर जाती है, वो खतरा उठाती है। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी माँ महसूस हो रही थी, लग रही थी जैसे कि ये देखने में that I was not entirely convinced. Entirely means क्या, completely, convinced, satisfied. मेरी माँ को पता लग गया था, मेरी माँ ने भाप लिया था कि मैं उसकी बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, सहमत नहीं थी। She looked at me reprovingly. Reproving means क्या, rebukingly या chidingly. गुस्से से, डांटती हुई नजरों से मेरी माँ ने मेरे को देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हमने इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। इसी दौरान मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, कुछ ज्यादा ध्यान न दिए बगैर ही रास्ते में जो चीजें आई उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और मैं स्टेशन पहुंच गई थी ये सोचते हुए। I was walking in familiar places again for the first time since the war. मैं पहली बार, familiar means क्या, नो, उन जानी पहचानी जगहों पर आई थी युद्ध के बाद। But I did not want to go further than was necessary. परंतु मैं जितना जरूरी था उसी जगह तक गई, उससे आगे नहीं जाना चाहती थी। I did not want to upset myself. Upset means क्या, sad, worry, परेशान करना। मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी, उदास नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज, की जो गली के, जो घरों के दृश्य में देखती, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम। प्रीसियस मीन्स क्या, वैल्यूएबल, जो बहुत ही कीमती समय मैंने यहाँ पर बिताया था, वहां की गलियों के दृश्य देख करके मैं अपने आप को परेशान करना नहीं चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. ट्रेन में, अब इमेजिन कर रही है, सोच रही है, ट्रेन में बैठी बैठी बता रही है कि ट्रेन में वापस जाते हुए मैंने मिसेस डॉर्लिंग को मेरे सामने देखा, जैसा कि जिस टाइम मैंने उसको पहली बार देखा था, पहली बार मेरे से उसकी मुलाकात हुई थी, उसी तरह। It was the morning after the day my mother had told me about her. कि यह उस दिन की मॉर्निंग थी जिस दिन मेरी माँ ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, उससे अगले दिन की सुबह थी। आई हैड गोट अप लेट, मैं देरी से उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को घर से बाहर भेज रही थी। ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी जो पीठ थी काफी चौड़ी थी। देयर इज माई डॉटर said my mother, मेरी माँ ने उस औरत को बताया कि यह मेरी बेटी है। She beckoned में से gave a signal, उसने एक संकेत किया to me, मेरी तरफ। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. अब औरत ने सिर हिलाया और उठा लिया। picked up means क्या, lifted, जो सूटकेस जो रैक के, कोट रैक के पास में नीचे रखा था, उसको उठा लिया। She wore a brown coat and a shapeless
हैड, शेपलेस मीन्स यहाँ पर अगली कह सकते हैं, अगली। उसने पहनी हुई थी एक भूरे रंग का कोट और एक क्रूप सी भद्दी सी टोपी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने मेरी माँ से पूछा क्या वह दूर रहती है। Seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case, जब मैंने देखा कि कितनी मुसीबत से, कितनी मुश्किल से वह भारी भरकम सूटकेस के साथ घर से बाहर जा रही थी, तो मैंने अपनी माँ से पूछा क्या वह दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेम्बर दैट, मेरी माँ ने कहा मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 में रहती है, इसको याद कर लो। आई हैड रिमेम्बर्ड इट, मैंने इसे याद कर लिया था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु वहां पर जाने के लिए मुझे लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। कहां पर जाने के लिए? 46 नंबर हाउस में, मार्कोनी स्ट्रीट में। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, इनिशियली मीन्स क्या? इन द बिगिनिंग, लिबरेशन मीन्स क्या? फ्रीडम, आजादी मिलने के शुरुआत में। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर स्टफ, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी उस पुराने सामान में, चीजों में। स्टफ मीन्स क्या? थिंग्स में। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक ये था कि मैं उन चीजों से डरी हुई ज्यादा थी। मीन्स पुरानी यादें और अधिक मेरे को परेशान करेंगी, डराएंगी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, डरी हुई थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड मीन्स क्या? इनकाउंटर, मुझे डर था कि मेरा आमना सामना आएगा, बिल्कुल सामने आ जाऊंगी विद थिंग्स, उन चीजों के, दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिनका संबंध था एक कनेक्शन से, एक संबंध से, रिलेशन से, जो कि अब खत्म हो गया था। एग्जिस्टेड मीन्स क्या? रिमेन्ड, अब जो रिश्ता नहीं था उससे उन चीजों का संबंध था। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, जिन चीजों को छुपा दिया गया था कबर्ड्स में, अलमारीज में, एंड बॉक्सेस और बक्सों में। एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो इंतजार कर रही थी, इन वेन मीन्स क्या? यूजलेस, बेकार में, कि कब उनको वापस दोबारा से अपनी प्रॉपर जगह पर रखा जाएगा। विच हैड इंडोर्ड ऑल दोज ईयर्स, विच थिंग्स के लिए आया हैड इंडोर्ड, इंडोर्ड मीन्स क्या था? टोलरेटेड, बर्दाश्त किया, जिन्होंने बर्दाश्त किया लंबे सालों को, काफी सालों को। बिकॉज देवर थिंग्स, क्योंकि ये सभी चीजें थी, इसलिए उन्होंने इनको, इस समय को बर्दाश्त किया था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, परंतु धीरे धीरे प्रत्येक चीज नॉर्मल हो गई थी, सामान्य हो गई थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, की जो ब्रेड थी अब हल्के रंग में आने लगी थी। देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अब एक बेड, एक बिस्तर प्राप्त हो गया था जिसपे आप बिना डरे सो सकते थे। ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू गैलेंसिंग एट ईच डे, एक रूम ऐसा मिल गया था जिससे जो बाहर के दृश्य थे उनको आप देख सकते थे, उनके ऊपर झलक ले सकते थे प्रतिदिन। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस, और एक दिन मैंने ध्यान किया, नोटिस किया कि मैं जरा क्यूरियस थी, ईगर थी, उत्सुक थी उन चीजों के बारे में, जो बिलोंगिंग्स थी उनके बारे में। That must still be at that address, जो कि अभी उसी एड्रेस पर थी। कौन से एड्रेस पर? मार्कोनी स्ट्रीट 46 पर। I wanted to see them, touch, remember, मैं उनको देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी। After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, मेरी पहली विजिट जो कि व्यर्थ रही, in vain means क्या? यूजलेस, बेकार रही, मिसेज डॉर्लिंग के घर की। I decided to try a second time, मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा फिर से जाऊंगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, अब सेकेंड विजिट के टाइम एक लड़की जो कि 15 साल की थी लगभग, उसने दरवाजा खोला मेरे लिए। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने उस लड़की से पूछा क्या उसकी माँ घर पर थी। नो, शी सेड माई मदर्स डूइंग एन इवेंट, इवेंट मीन्स क्या था? ए जॉब, ए वर्क। उस लड़की ने बताया कि मेरी माँ काम से बाहर गई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं उनका इंतजार करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, अब जो पैसेज है, स्ट्रीट है, घर के अंदर जाने की जो गली है, उसमें मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, हनुका क्या होता है? ए ज्यूइश फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और इस फेस्टिवल पर जो
मोमबत्ती दान था, मोमबत्ती जलाने के लिए वो लटका हुआ था एक मिरर के साइड में। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Cumbersome means क्या था, heavy। हम कभी भी इसका यूज नहीं करते थे क्योंकि ये जो कैंडल स्टैंड था, मोमबत्ती स्टैंड था, ये ज्यादा हैवी था एक मोमबत्ती के बजाय। Won't you sit down? asked the girl. क्या आप बैठेंगी नहीं, लड़की ने पूछा। She had opened the door of the living room. उसने दरवाजा खोल करके पकड़ा हुआ था लिविंग रूम का, ड्राइंग रूम का, बैठक कक्ष का, सिटिंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं अंदर चली गई लड़की के सामने से गुजरते हुए। पास्ट हर मीन्स क्या है, वेंट फ्रॉम हर, उसके साथ से चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मीन्स क्या, स्केयर्ड, मैं रुकी गई, डरी हुई थी। आई वॉज इन द रूम, सॉरी इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। स्टूडेंट्स, व्हाट डज द नरेटर वांट टू टेल अस हियर? द नरेटर नोज द थिंग्स, the things in the room belongs to the narrator. That's why she knows the things, but she did not know the room because that room was Mrs. Dorling's. कमरे को नहीं जानती है, चीजें जो वहां पर है उनको जानती है, इसलिए वो कहती है आई वॉज इन ए रूम आई न्यू, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और जिसको नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, मैंने अपने आप को पाया उन चीजों के बीच में, मिडेस्ट मीन्स क्या, अमंगस्ट, उन चीजों के बीच में। आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, जिनको मैं दोबारा से देखना नहीं चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोस्फियर, परंतु जिन चीजों ने मेरे को ऑप्रेस्ड किया, ट्रबल्ड किया, मुसीबत में डाला, दोबारा से एक अजीब माहौल में मैं पहुंच गई थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, या ऐसा कहें कि प्रत्येक चीज, टेस्टलेस मीन्स क्या, बेढंगे, प्रत्येक चीज को बेढंगे तरीके से रखा गया था, बेतरतीब ढंग से वहां पर रखा गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, और ये या कहें, ऐसे कहें कि जो वहां का फर्नीचर था वो अगली था, डर्टी था, अच्छा फर्नीचर नहीं था उस रूम का। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, मगी स्मेल मीन्स क्या, स्मेल ऑफ डैम्पनेस, गीलेपन की जो स्मेल थी वो वहां पर आ रही थी, उसकी वजह से वो चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कारण क्या था। बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, परंतु स्केर्सली मीन क्या, मुश्किल से, हार्डली, बड़ी मुश्किल से मैंने साहस किया मेरे चारों तरफ चीजों को देखने का। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक चेयर मेरी तरफ आगे बढ़ा दी। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ्स, मैं बैठ गई चेयर के ऊपर और घूर करके देखने लगी उस वुलन के कपड़े को, टेबल के कपड़े को जो कि बिछा हुआ था। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, जैसे ही मैं उस कपड़े को रगड़ रही थी मेरी फिंगर्स गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने जो लाइन पैटर्न की, जो डिजाइन की लाइनें बनी थी उनको देखा बड़े ध्यान से, एक एक को। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, कहीं पर किनारे पर, एज मीन्स क्या, किनारा, बॉर्डर, जो बॉर्डर था उस टेबल क्लॉथ का, उस पर कहीं ना कहीं जले हुए का निशान था। मार्क मीन क्या, साइन, चिन्ह। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कि जो जल गया था, वो निशान रह गया था, उसको कभी ठीक नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा मेरी माँ जल्दी ही वापस आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप, मैंने मेरी माँ के लिए पहले से चाय बना कर रखी है, क्या मैं आपके लिए कप ले आऊं? थैंक यू, नरेटर उसको कहते हैं धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय की टेबल पर कप बिल्कुल तैयार रखे थे। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उस लड़की की पीठ भी चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह से। शी पॉट टी फ्रॉम ए व्हाइट पॉट, उसने एक चाय की सफेद केतली से चाय उड़ेली, डाली, पॉट मीन्स क्या, तो उड़ेलना, डालना, लिक्विड चीजों को जब एक दूसरी बर्तन में डालते हैं तो उसको पॉट कहते हैं। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और जो ये व्हाइट पॉट था चाय का, चाय की केतली थी, उसकी जो ढक्कन था, कवर था, लिड मीन्स क्या, कवर, ढक्कन, उसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेम्बर, मुझे याद था।
She opened a box and took out some spoons. Took some spoons out. उसने एक बॉक्स खोला और कुछ चमचे बाहर निकाली. That's a nice box. I heard my own voice. यह बहुत ही सुंदर बॉक्स है. मैंने मेरी आवाज सुनी. It was a strange voice. बड़ी अजीब आवाज लग रही थी. As though each sound was different in this room. जैसे कि इस रूम की और जो आवाजें थी वो बिल्कुल अलग थी मेरी आवाज से, तो अपनी आवाज बड़ी अजीब लगी. Oh, you know about them. अरे तुम इनके बारे में जानती हो. She had turned round and brought me my tea. वह घूमी और मेरी चाय मुझे दी. She laughed. वह हंसी. My mother says it is antique. मेरी माँ कहती है कि ये बहुत ही पुरानी है. Antique means पहले भी आया था क्या है, very old, बहुत ही पुरानी है. We have got lots more. Lots means क्या, many. हमारे पास बहुत सारी और भी हैं. She pointed round the room. उसने कमरे की तरफ इशारा किया. See for yourself. तुम खुद ही देख लो. I had no need to follow her hand. मुझे जरूरत नहीं थी उसके हाथ के पीछे पीछे नजर डालने की, देखने की. I knew which things she meant. मैं जानती थी वह किन चीजों की तरफ इशारा कर रही थी. I just looked at the still light over the tea table. Still life, sorry. मैंने केवल देखा जो स्टिल मीन्स क्या है पर नॉट इन मोशन, गति में नहीं था, बिल्कुल शांत था, स्थिर था. उस चीजों को ही देखा जो टेबल पर रखी थी, जो कि हिलडुल नहीं रही थी, शांत थी. एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड. फैंसीड मीन्स क्या, लाइक. एक बच्ची थी, जब मैं एक बच्ची थी उस समय मैं पसंद करती थी क्या, द एप्पल ऑन द पेवेटर प्लेट. पेवेटर क्या होता है, प्लेट ऑफ जिंक. तांबे की बनी हुई प्लेट में मैं एप्पल खाना बड़ा पसंद करती थी. वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड. अब वो लड़की मिसिस डॉर्लिंग की बेटी वो कहती कि हम इसे हर काम के लिए यूज करते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. एक बार तो हमने जो प्लेट्स दीवार पर लटकी हुई हैं उनमें भी खाना खाया था. आई वॉन्टेड टू सो मच. मैं बहुत अधिक चाहती थी. बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल. परंतु इसमें कोई खास बात नहीं थी. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. मुझे वो जले हुए का निशान, साइन था, वो मिल गया था टेबल क्लॉथ में. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. क्वेश्चनिंग मीन्स क्या है, एज इफ आस्किंग क्वेश्चन. लड़की ने मेरे को पर्सन पूछती हुई नजर से देखा. यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा. यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स. कि तुम कितनी अधिक टच करती थी इन प्यारी चीजों को इन द हाउस, घर में. यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर. तुम अब मुश्किल से ही इनको ज्यादा टाइम तक देख पाओगी. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग. केवल तुम तभी ध्यान देते हो जब कमरे में कुछ गायब होता है, कुछ अजीब होता है. अदरवाइज जो रेगुलर चीजें होती है उनके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है. बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड. या तो कोई चीज रिपेयरिंग के लिए, ठीक होने के लिए, मेंड करने के लिए दे दी गई है, तब आप ध्यान देते हो कि चीज यहाँ पर नहीं है. और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल. या उदाहरण के लिए आपने अपनी कोई चीज किसी को उधार दे दी, तभी आपकी नजर जाती है कि वो चीज अपनी जगह पर नहीं है. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस. दोबारा से मैंने सुनी अपनी जो अननेचुरल साउंड थी. अननेचुरल क्यों कहा कि जो वहां की साउंड थी उनसे सबसे अलग थी नैरेटर की साउंड, इसलिए. एंड आई वेंट ऑन. और मैं कहती गई. आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ जो चांदी की चीजें हैं उनके ऊपर पॉलिश करने में. इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो. ये बहुत लंबे समय पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड. बोर्ड मीन्स क्या, फेड अप. और प्रोबेबली परहैप्स शायद मैं उदास थी. दैट डे, उस दिन. और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम. और शायद मुझे घर पर रुकना पड़ा था. बिकॉज आई वॉज इल. मैं बीमार थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. और ऐसा करने के लिए मेरी माँ ने कभी भी पहले मेरे को नहीं कहा था. I asked her which silver she mean and she replied. मैंने उनसे पूछा कौन सी चांदी की चीजें, और उसने उत्तर दिया सरप्राइज, बड़े आश्चर्य से, that it was the spoons, forks and knives. Of course, कि ये चीजें चम्मच थी, कांटे थे, चाकू थे वास्तव में.
एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बड़ी अजीब बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। मैं नहीं जानती थी कि जो कटलरी, कटलरी क्या है, फोक, स्पून, नाइफ्स, कांटे, छुरियां जो थे वो चांदी के थे जिनमें हम प्रतिदिन खाते थे। मुझे आज से पहले नहीं पता था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। बेट मीन्स क्या है, हैव ए बेट। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम ये अभी भी नहीं जानती हो। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, इंटेंटली मीन्स क्या, घूर करके देखना, स्टेयर, गेज्ड। मैंने उसको घूर करके देखा, लड़के की तरफ। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, कि जिनके साथ हम खाते हैं, उसने पूछा। वेल, डू यू नो, ठीक है, क्या तुम जानती हो? शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइडबोर्ड, साइडबोर्ड मीन्स यहाँ पर क्या है, कबर्ड, अलमारी। वह अलमारी के पास से गई एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, और वह एक दराज को खोलना चाहती थी। आई विल लुक इट्स इन हेयर, मैं देखती हूँ, ये यहाँ पर होंगी। आई जम्प्ड अप, मैं खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी होगी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, अब लड़की का हाथ दराज के अंदर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ के लिए इंतजार नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना ही होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली। द गर्ल पुट द डोर ओपन, लड़की ने दराज को खींच करके खोला। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। जिंगलिंग मीन्स क्या, टिंकलिंग, खनकने की आवाज। जब मैं गली में जा रही थी तो मुझे सुनाई दी छनकने की आवाज, खनकने की आवाज, जो चम्मच और फोक्स की थी, कांटों की थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, गली के कॉर्नर पर जाकर के मैंने नेम प्लेट को दोबारा से देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, इसके ऊपर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 पर जा चुकी थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनीमोर, परंतु मैं अब इस एड्रेस को ज्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, अब मैं दोबारा वहां पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जो चीजें, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, थिंग्स, जो चीजें आपसे संबंधित होती हैं, लिंक्ड होती है, कनेक्टेड होती हैं तुम्हारी यादों से, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर, जो कि पहचानी गई जिंदगी होती है पहले की। फॉर्मर मीन्स क्या, अर्लियर टाइम की, पुराने समय की, पहले के समय की। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, कि वो फटाफट अपना जो वैल्यू है, कीमत है, वो खो देती है। व्हेन स्टार्ट फ्रॉम देम, जब शिवर मीन्स क्या, कट ऑफ, जब हम उनसे कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और जब तुम उनको देखते हो दोबारा से अजीब सराउंडिंग्स में, अजीब वातावरण में। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं उन चीजों का करूंगी भी क्या, एक छोटे से किराए के घर में, किराए के कमरे में। वेयर द स्ट्रेट्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो, जहां पर स्ट्रेट्स मीन्स क्या, स्मॉल टोन पीसेस, फटे हुए छोटे छोटे टुकड़े जो पेपर के हैं, वो अभी भी खिड़कियों पर लटके हुए हैं। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और वहां की जो टेबल है, उसकी जो ड्रॉर है वो बहुत ही छोटी सी है, नैरो है, उसमें एक मुट्ठी भर कटलरी से ज्यादा कटलरी, चाकू, छुरी, चम्मच रखने की जगह नहीं है। तो वहां पर मैं इतने सारे स्टफ को ला करके क्या करूंगी? आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, रिसॉल्व मीन्स क्या, डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था एड्रेस को भूलने का। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और सभी चीजों को मैं भूल चुकी थी। दैट वुड बी द इजीएस्ट, और जो कि ये सबसे आसान काम था। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन। आई होप इट इज क्लियर टू यू।